Hello, dear aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to CGP Mentors. My name is Sonika Seni, and this is the continuation of UPSC EPFO series. This is the third video in the series. The very first video caters to that we have analyzed the pattern of the examination, that what are the four subjects जहाँ से more than 60 or you can say 65 questions आते हैं. That means more than 55% of the questions comes from only 4 subjects, and how you have to study these subjects at the priority list कि second priority पे कौन सा होना चाहिए, third priority पे कौन सा होना चाहिए. That means we have analyzed 3 years or you can say the past 3 years papers कि कौन से सब्जेक्ट्स में स्टेबिलिटी है, कौन सा डायनेमिक है, किस पे रिलाई कर सकते हैं, and all of that. You can go and watch for that video because it is for every aspirant who wishes to give UPSC EPFO examination. Then the second video was catering to the non-UPSC aspirants, that if you are you do not have a UPSC background and how you have edge in the UPSC EPFO. Now this video is targeting or focusing on only those aspirants who have given or who are in the journey of UPSC, CSC examination or any kind of UPSC like CAPF. So basically, we will try to strategize our preparation in a way that what are your core areas, what are your strengths, what is your average, and what you shall not ignore at all, right? And what are the benefits of giving this examination and why one should rely on this examination. So let's start our video. Okay, so ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, but बातें जो हैं काफ़ी to the point होगी, ठीक है? Wait a minute. चलिए, तो एज यू ऑल नो हमारा जो एग्जामिनेशन है, द एक्सपेक्टिंग डेट्स नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है इन अ डे और टू और दिस वीक, एंड द एक्सपेक्टेड डेट इज इन दिसंबर, राइट? दिसंबर में ये आपका एग्जामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. तो देखो, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट यू हैव टू सी पेपर कि कितना आपको आता है, राइट? और आई वुड से नॉट आता है, दैट मीन्स कितना आर यू अवेयर ऑफ दैट कीवर्ड्स. ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, राइट? हालांकि उसमें मैंने 2-4 क्वेश्चंस लिए थे. यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट? 2025 क्या करना है आपको? 2025 का पेपर उठाना है. देयर वाज अ कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द EO/AO प्लस APFC, ठीक है? चलिए, तो उसमें क्या है, आपको ये देखना है कि चलो अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें यू विल फाइंड वेरियस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी लाइक, अच्छा मुझे ये चीज मैंने पढ़ी हुई है, इफ आई रिवाइज इट आई विल गेट टू नो, right? Or I know this thing. Like suppose there is a question about freedom struggle, right? Or there's a question about Supreme Court, or is there's a question about High Court, or there's a president question, right? Or let's say there was a fiscal health index कि भाई ठीक है, I have read about it, right? Or how much contribution is there in the in the total national GVA from the services sector, which is about 55%. So इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि you will get a kind of an idea that ये जो examination है मेरे कितने reach में है, and you will get to know कि yes, this examination is on the lines of UPSC, right? It is on the lines of UPSC. तो सबसे पहला काम, the first thing you should do, right, at the priority list is to see the paper. Online भी देख सकते हो. Just switch the pages, right? Read the questions. Then you have to do the exam analysis, right? And the pattern. And you have to see the syllabus. ठीक है. अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में सेम चीज बताई थी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड सेम ही रहेगी सबके लिए, बाकी फिर आपका डिफरेंट होता जाएगा. सो दीज आर 3 थिंग्स, ठीक है? दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स. One second. So these are 3 different things. When I say that exam analysis, what does it mean? It means that you have to analyze the pattern of the paper questions that are coming. कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में स्टेबिलिटी है, कौन सा सब्जेक्ट डायनेमिक है, and that I have done for you. In 2023 there were 2 papers, ठीक है? In 2023 2 papers were held. One was EO एंड AO. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जब वो डाउनलोड करने जाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि कई बार ये मिलता है, कई बार ये, तो फिर उनको लगता है भाई एक साल के 2 पेपर कैसे हो सकते हैं? वो इसलिए बिकॉज एट द टाइम 2 सेपरेट पेपर्स फॉर द प्रीलिम्स वर they're combined, whereas in the year 2025 they were 2 different papers. In 2025 they were combined examination. Obviously the cutoff for the APFC and EO/AO were different, ठीक है? अब इसी तरीके से आई हैव एनालाइज द एंटायर पेपर सब्जेक्ट वाइज, कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आई हैव एनालाइज्ड, सो दैट यू आर एबल टू नो दैट कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रायोरिटी पे देने हैं. ये हो गया आपका एग्जाम एनालिसिस. कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, अदरवाइज यू हैव टू सी द वेरी फर्स्ट वीडियो, ओके?
आई थिंक डे बिफोर yesterday रिलीज हुई है. So when I say exam pattern, in the exam pattern, you must be aware that there is no means, there is no descriptive, there are only two phases. One is phase 1 and the other is phase 2, or you can say interview, or you can say there is prelims, right? In the UPSC की भाषा में it is prelims, mains and interview. So there is prelims and interview. ठीक है, एक सेकेंड बस थोड़ा सा बता देती हूँ. One is prelims and the other is interview. Now, this prelims caters, or this prelims is of 300 marks, 120 questions, right? And interview is there. I think it is of 100 marks. But आपको पता होना चाहिए that unlike UPSC, यहाँ पे prelims के marks interview के marks में add होंगे. ठीक है, यहाँ पे interview के marks क्या होंगे? add होंगे. In which prelims का 75% weightage है. That means the more you score, the more weightage will be added in your final cutoff or merit list. Whereas here 25% weightage. Let's say you have got out of 100. हाँ, तो जितने भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं उसका 25% आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. लेट्स से अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर 10 मार्क्स है तो 2.5% आपको मिल जाएगा. 2.5 मार्क. Wait a minute. So this is the pattern. You can say this is the pattern of the examination in which there are only two phases. Now, कमिंग टू द सिलेबस, राइट? कमिंग टू द सिलेबस, वहाँ पे उन्होंने एक ब्रॉडर आपका सिलेबस दिया हुआ है. ठीक है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे. ब्रॉडर सिलेबस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. उसका बाइफर्केशन करेंगे हम या बाइसेक्शन करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर सोशल सिक्योरिटी है या लेबर लॉज है तो उसके विद इन भी कौन कौन से टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं. तो यहाँ पे जो वीडियो है दैट इज येट टू कम, राइट? एंड यू कैन सी योरसेल्फ also. Then you have to do previous year analysis, right? आपको फिर क्या करना है? previous year paper analysis करना है, in which you have to see what are the type of questions that is being asked, what are the core areas or the things, right, that I need to focus on, right? And how, what are the type of questions? कि suppose अगर quant आ रहा है तो is it UPSC style, right? You also know that in UPSC quant is of very high level, or you can say the CSET is of high level, but in this UPSC CSET is of qualifying nature, right? Is of qualifying nature, and we mostly rely on English comprehension plus reasoning questions. And when we do certain topics like number system, तो उसमें क्या होता है? Then you can qualify it. But यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि that it is not qualifying. The more you score, the more your chances to be in the cutoff list, right, is high. So in this, right, in this you have to see कि देखो ना तो questions इतने आसान होंगे for like banking examinations. Banking examinations में I won't say आसान होते हैं, just that they're too direct. But ना ही questions इतने indirect होंगे जहां पे आपको इमेजिन करना पड़ता है. इन यूपीएससी स्पेसिफिकली इन द नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इमेजिनेशन है. सो हियर द क्वेश्चंस आर ऑफ मीडियम लेवल, दैट इज आई कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैंकिंग, राइट? कि बैंकिंग के लाइंस पे पूछा जाता है, बट देन योर दिस थिंग थिंकिंग एंड इमेजिनेशन इज इंक्लूडेड. इट्स नॉट लाइक आपने एक क्वेश्चन कर लिया उसके सेम लाइंस पे आ जाएगा, देन यू हैव टू थिंक. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थिंक करना पड़ता है एज एन यूपीएससी. ठीक है, तो my point is when you see the previous year paper you will realize that it is, ठीक है, UPSC EPFO examination is far easier than the UPSC. ठीक है, the type of questions that is being asked वो काफी easy होते हैं. ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बतानी है, या फिर आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, सो इट वुड बी इजी टू व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, इन यूपीएससी वी रीड ancient history, medieval and modern, but in this the syllabus is only about modern history. That means we don't have to read ancient, we don't have to read medieval. वो भी आगे मैं आपको बता दूंगी. चलिए, so this is your strengths. ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेंथ्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट एग्जाम पैटर्न इज लाइक यूपीएससी. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. हाउ? बिकॉज द पेपर इज पेन एंड पेपर, है ना, पेन एंड पेपर है, ऑफलाइन होता है. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस लाइक यूपीएससी सीएससी. देन इट इज अ गुड प्लान बी. आपको भी पता है दैट नाउअडेज यूपीएससी इज सो अनसर्टेन एंड यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन एग्जामिनेशन. द मोस्ट यू कैन गिव ओनली 1 or 2 years, 2 attempts. उसके बाद यू शुड start seeing other examinations, be it regulatory body examinations, other examinations like state PCS, other examinations like UPSC, EPFO. ठीक है, प्लीज ये गलती मत करना, एक एग्जाम पे रिलाई मत करना, because I have done this mistake and I have wasted a lot of years in this, so you don't have to repeat this. Doesn't matter, right? Since you are preparing it, बस थोड़ा सा टाइम आप EPFO को भी दे दो, 2-3 घंटे, है ना, अलग से, टू ब्रश अप योर स्किल्स फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, EPFO रिलेटेड सब्जेक्ट्स, टू ब्रश अप फॉर योर कॉन, राइट, टू ब्रश अप फॉर द इंग्लिश, सो दैट आपका कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान भी क्रिएट होता रहेगा. ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप यूपीएससी मत दो. ठीक है, देन
डिफिकल्टी लेवल, राइट, ये मैं आपको पहले ही बता दी हूँ दैट यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है और ईपीएफओ का जो प्रीलिम्स है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है ईपीएफओ का जो है काफ़ी कंपैरेटिवली क्या रहता है, ईजी रहता है. नाउ टाइम मैनेजमेंट, सपोज यू आर गिविंग 2 एग्जामिनेशंस देन यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, कि बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का तो अपना मई और जून में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बाद में होएगा, राइट, सो यू कैन कोरिलेट वो दो सब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉमन सब्जेक्ट्स एंड एज द एग्जाम अप्रोचेस यू कैन गिव मोर टाइम टू ईपीएफओ, राइट. देन स्ट्रेटेजी डिफरेंस तो यही रहेगी कि आपको जो है किस तरीके से कैसे सब्जेक्ट्स देना है. अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर. नाउ व्हाट आर द कॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक है, पॉलिटी इज कॉमन, right, polity is common, so if you read polity that means you're reading for both UPSC, CSE and EPFO. Then economics is common, however in UPSC CSE, right, in UPSC CSE economics बहुत भर भर के आती है, and आजकल इस बार तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आई थी from the PIB, from the various reports. Now इसमें इकोनॉमिक्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो काफ़ी डायनेमिक है, राइट. 3 to 4 क्वेश्चंस अभी इस टाइम आए हुए थे इन द ईयर 2025 एंड दैट टू वाज मोर करंट एफिलिएटेड, इट वाज नॉट स्टैटिक, राइट, इट वाज मोर करंट एफिलिएटेड. फॉर एग्जांपल दे हैड आस्क्ड अबाउट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, राइट, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या होता है इस तरीके से उन्होंने पूछा हुआ था, और व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट वर देयर इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स. देन ओके, थर्ड हिस्ट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग हिस्ट्री बट देन यू हैव टू फोकस मोर ऑन मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी, ज़्यादा क्या सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री ही है, एंशिएंट और मिडाइवल नहीं है. देन आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है. जितने यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं 3-4, अभी तो ज़्यादा आने लगे हैं, देखो 7-8 आ रहे हैं, पहले 3-4 ही आते थे. तो अभी आर्ट एंड कल्चर के इसमें 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं एंड 4 to 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, right. So in that scenario, right, in this scenario of art and culture, what is happening, that equal importance is being given to both modern history and art and culture. तो आप ये इस चीज को कंबाइन कर सकते हैं. Now अब देखो आपका यूपीएससी में एनवायरमेंट आता है भर भर के, ठीक है, ज्योग्राफी आती है भर भर के, यहाँ पे ज्योग्राफी इज नॉट देयर इन द सिलेबस, इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस. एनवायरमेंट भी एज सच कोई सिलेबस में नहीं है. देयर वर 2 क्वेश्चंस इन द 2025 एंड दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू करंट एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड अबाउट परमाफ्रोस्ट, ठीक है, तो ये करंट एस्पेक्ट है कि भाई परमाफ्रोस्ट जो है अगर वो रिलीज होती है तो व्हाट विल बी द बेसिकली इम्पैक्ट, राइट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट और बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ द दिस थिंग थॉइंग ऑफ, ऐसा बोलते हैं ना, थॉइंग ऑफ या पिघल जाती है जो परमाफ्रोस्ट वो. सो तो कैन आई से दैट पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एंड आर्ट एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक्स इज बैलेंस्ड whereas environment and geography पूछी ही नहीं जाती है. नाउ यू रीड जनरल साइंस, राइट, कौन सा पॉइंट हो गया ये अपना 5th 6th 7th जनरल साइंस. यू रीड जनरल साइंस, यू रीड एनसीईआरटीज, यहाँ पे भी जनरल साइंस पूछी जाती है, अगेन सेम ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी, ठीक है. इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी डायनेमिक एज वेल, राइट. फॉर एग्जांपल दिस वाज नॉर्मल क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए थे साइंस के, ठीक है. तो ये आपका क्या है, आई कैन से दैट दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर स्ट्रेंथ वेयर यू हैव टू प्ले. पॉलिटी के 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं फिर विच यू हैव टू प्ले, ठीक है. तो ये आपका हो गया विच पॉइंट, this point, that this is your strength. Now in this UPSC APFO they are, as UPSC is I can say obsessed with number system, तो यहाँ पे भी नंबर सिस्टम के 3-4 क्वेश्चंस यू कैन सी, ठीक है, नंबर क्वेश्चंस है तो नंबर सिस्टम है यहाँ पे. देन देयर इज करंट अफेयर्स, यू रीड करंट अफेयर्स, ठीक है. अब मैं आपको सारी चीजें शुगर कोट करके नहीं दूंगी. आई विल ऑल्सो टेल दैट सपोज अगर आप क्वांट कर रहे हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रियलिटी चेक पता होना चाहिए, ठीक है. इफ यू आर डूइंग करंट अफेयर्स, व्हाट करंट अफेयर्स वी डोंट डू इन यूपीएससी एंड व्हाट टाइप ऑफ करंट अफेयर्स वर आस्क्ड और कैन बी आस्क्ड इन दिस यूपीएससी पीएफओ, ठीक है. तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगी अपने नेक्स्ट स्लाइड में. तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स इन दिस, व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड हाउ कैन यू वर्क and balance both the preparation. Now know your average. अब देखो this is not a universal truth, है ना, किसी it can be different for different people, but in general हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसा usually होता है that people, since UPSC aspirants more rely on the comprehension, so here the quant is average, quant average होता है, ठीक है. यहाँ पर हम 3-4 चीजें कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, we do number system, we do calendars, we do clocks, right. But then अगर आपने ये कर लिया ये तो आप कर लोगे, but then there's certain questions like time and work they do ask, right, for example profit and loss they do ask, ठीक है.
एंड सो दैट ये आपका थोड़ा सा एवरेज है। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ जीएस के सब्जेक्ट्स के भरोसे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज इन क्वांट देयर वर 15 क्वेश्चंस इन द ईयर 2025, आउट ऑफ विच रीजनिंग के 2 या 3 ही थे। तो इसका मतलब क्वांट भर भर के पूछा जा रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन योर कॉम्पिटिटर हु इज वेल वर्स्ड इन क्वांट। तो आप भले ही जीएस में कितने वेल वर्स हो, बट यू ऑल्सो नो दैट द जीएस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी डायनेमिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉडर्न हिस्ट्री एंड इन द आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यू आर एबल टू डू ओनली 5-6 एंड दैट टू विद नॉट श्योरिटी, बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट इन द एग्जैक्टली एग्जामिनेशन, राइट, कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, यू ऑल्सो नॉट अवेयर। वेयर पॉलिटी की थोड़ी सी सर्टेनिटी होती है ना, पॉलिटी की सर्टेनिटी होती है, यू ऑल्सो नो दैट। सो कैन वी रिलाई ऑन जस्ट जीएस थिंकिंग दैट ओके आई विल डू जीएस, दे वोंट बी एबल टू डू जीएस। उनका जीएस एवरेज है ना, नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, आपका क्वांट है, they have to work on their GS, you have to work on your quant. This is the strategy. ठीक है। नाउ अब इंग्लिश में फॉर द यूपीएससी देयर इज कॉम्प्रिहेंशन एंड वेयर एप्टीट्यूड लेवल कॉम्प्रिहेंशन इज बीइंग चेक्ड, लाइक क्रिटिकली एग्जामिन व्हाट इज अ मैसेज, व्हाट इज अ assumption, व्हाट डू यू डिड्यूस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नो डाउट एक कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, बट द मोर फोकस इज ऑन ग्रामर, राइट, द मोर फोकस इज ऑन ग्रामर, the more focus is on vocabulary. There were 5 to 6 questions, 5 questions from vocabulary and 1 question was in comprehension that was related to vocabulary. So I can say that without doing vocabulary or not taking seriously English, कि भाई मैं तो अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ, अच्छी इंग्लिश है, आप एक बार पेपर उठा के देखोगे, you will realize that it is very difficult. The options were similar, या आपको पता ही नहीं होगा। दो they were the sentences, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछ लिया कि इसका मतलब बताओ, they were in the sentences, but आपको ये चीज बिना पढ़े आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। एंड दिस इंग्लिश इज सो इम्पॉर्टेंट दैट हर बार, ठीक है, आखिरी के 3 इयर्स के पेपर उठाओगे 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश से, 20 क्वेश्चंस, राइट। नाउ दोस हु हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी, दे कैन डेफिनेटली do 15 questions correct in it. So you cannot ignore English and you have to work hard for it, ठीक है। नाउ देखो पहले कंप्यूटर काफी पूछा जाता था, है ना, 10 क्वेश्चंस आते थे, इस बार देयर वर 5-6 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच इट वाज मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो मैम कंप्यूटर भी करना पड़ेगा। लेट्स से आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू 3 to 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क। इट इज नॉट ऑफ 2 मार्क एज इन यूपीएससी, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क, हाउएवर द नेगेटिव मार्किंग इज सिमिलर, दैट इज 1/3। तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इट इज मोर ऑफ अ स्टैटिक, और जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, तो ये आपका एवरेज है जहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है जी। देन current affairs. See, no doubt we do a lot of current affairs. When I say, because I was also a UPSC aspirant, so no doubt we do a lot of current affairs, ठीक है। बट इसमें थोड़े से अटपटे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अटपटे इन द सेंस कि दे नॉट अटपटे, अटपटे इन द सेंस कि फॉर अस वी डू नॉट रीड थिंग्स लाइक अवार्ड्स, ठीक है, किसको कौन सा अवार्ड्स मिला है, राइट, ऑबिचुअरीज, वी डोंट रीड काइंड ऑफ स्पोर्ट्स क्वेश्चन। समटाइम्स यूपीएससी में एक बार आ जाता है और भर भर ऐसे 2 क्वेश्चन एक बार पूछ लेते, तो अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, ऑबिचुअरीज हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरी के 2-3 महीने के फैक्चुअल चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। किसी भी बैंकिंग करंट अफेयर्स को आपको यहाँ पे बाय हार्ट रिलीजियसली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। अब आ जाइए आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स यूपीएससी वाला जो है बच्चा इतना नहीं करता है। The schemes that are in the current affairs, we usually do that. We don't pick the entire government schemes and start keep reading it. What is in the news, we do that. So government schemes is the core subject of EPFO and 3 to 4 questions. Basically in the EPFO, core subject is social security. In this social security means the kind of schemes that government launches for securing, ठीक है, for securing the people, ठीक है, सोशली, राइट, डीपीएसपी भी है। सो गवर्नमेंट स्कीम्स के यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो इफ यू थिंक दैट ये हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो बीच में मैं आपको बता ही देती हूँ दैट ऑब्वियसली आवर सीजीबी विल लॉन्च एंड ऑलरेडी लॉन्च द यूपीएससी ईपीएफओ, है ना, यूपीएससी ईपीएफओ रिलेटेड कोर्स, एंड इन दैट द सब्जेक्ट्स दैट इज रिलेटेड टू ईपीएफओ ओनली, है ना, जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं वो अलग से लॉन्च होगा। आपको जीएस नहीं करना है ना, आपको जीएस आता है, बट अलग से अगर आपको अलग से सब्जेक्ट चाहिए दैट इज रिलेटेड टू ईपीएफओ, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल सिक्योरिटी, तो यू कैन कवर दैट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो सोशल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मिसलेनियस आई मीन द करंट अफेयर्स में जो आते हैं तो हम उसको मिसलेनियस कैटेगरी में डालते हैं, तो सच काइंड्स ऑफ करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। नाउ दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स विच इज द लेवल प्लेइंग फील्ड
फॉर एवरीवन, ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। दीज आर द लेवल प्लेइंग फील्ड सब्जेक्ट्स जो जिसने लाइक एस्पिरेंट्स, चाहे वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, पीओ एस्पिरेंट्स हो, एसएससी एस्पिरेंट्स हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, वो ये चीज नहीं पढ़ते हैं। और ट्रस्ट मी, और मैं इसको एक कैटेगरी में डालती हूँ एंड दैट इज नोन एज ईपीएफओ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, राइट। मैं इसको जिस कैटेगरी में डालती हूँ दैट इज ईपीएफओ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स कोर आपका ईपीएफओ रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। वन इज लेबर लॉस एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो प्लस सोशल सिक्योरिटी, जो हमने पीछे डिस्कस किया। द अदर इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द थर्ड इज अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पोर्शन इज लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, किसी को यहाँ पे कोई एज नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसने जितनी मेहनत करी उतना उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको उतना फ्रूट्स मिलेगा। The second part about this, that there is such a stability in the number of questions that is being asked. 30 questions out of 120 questions. 30 questions out of 120 questions is being asked from this, right? So can I say 1/4 paper आपका ये हुआ? Now, in this labor laws and social security, 15 questions. Labor laws, social security and industrial relations combinedly had 15 questions. इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी के हो जाएंगे एंड बाकी लेबर लॉस के। नाउ अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग अगेन हैज 15 क्वेश्चंस, इन विच इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग कंबाइनली विल हैव 4 to 5 questions, अकाउंटेंसी हैज मोर। अब मैम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनको तो अकाउंटेंसी आता होगा, इट्स ओके। कॉमर्स वाले बच्चों को अगर अकाउंटेंसी आता है सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं देखो एक बैलेंस हो जाता है। मे बी दे आर नॉट गुड इन कॉन्ट, मे बी दे आर नॉट गुड इन जीएस, तो आपको वो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें तो अकाउंटेंसी आता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज देयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट। सेकंड थिंग देयर इज स्टेबिलिटी, 30 क्वेश्चंस मींस 30 क्वेश्चंस, इट कैन बी मोर। थर्ड थिंग, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर न्यू सब्जेक्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी लेवल ऑफ डायनेमिक कम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है, ऑडिटिंग है उसका करंट एस्पेक्ट पूछ लिया, लेबर लॉज है उसका करंट एस्पेक्ट पूछ लिया। स्टैटिक, इट इज स्टैटिक इन नेचर एंड स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज बीइंग आस्क्ड। अगर आपने रिलीजियसली पढ़ाई कर ली देन यू आर गुड टू गो। एंड द वेरी मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट दैट it is scoring. Cost benefit ratio is very high. For example, if you read modern history and art and culture, and let's say you give let's say 40 hours to it, and then also you will not be sure whether you will be able to crack those questions in the examination. But this portion, if you give 50 hours to this, I guarantee that out of these 30 questions, you will be able to do 25 questions in the examination. So the cost benefit ratio is very high in it, right? It is very interesting also, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। सो इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नंबर जो है वो सेम रहता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर। ऑब्वियसली आपको टफ लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपको लगेगा ये क्या है। बट एज एन यू आर देयर, आप उस चीज़ की पढ़ाई करते हो, आप लेक्चर्स देखते हो, वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। मैंने भी किया है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था एंड I fall in love with these subjects. However, I have a commerce background, so accountancy मुझे आता था, तो labor laws and industrial relations were new to me. So and is a very high cost benefit ratio. चलिए, that means benefit is very very high. Putting on the time. So अब आपको 5-6 चीजें ध्यान में रखनी है, दैट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं तो यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो चीज़ें आसान हैं। नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स और द बैंकिंग एस्पिरेंट्स ऑल्सो डू हैव एज इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज उनका कॉन्ट अच्छा होता है, उनका इंग्लिश अच्छा होता है, वो कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। दे समटाइम्स जो ऐसे साइंस तो नहीं पढ़ते हैं, बट एसएससी स्टूडेंट्स दे डू रीड जनरल साइंस। उनकी करंट अफेयर्स उनका करंट अफेयर्स पोर्शन भी काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज बैंकिंग के एग्जामिनेशंस जो है वो साल में काफ़ी बार होते हैं एंड दे डू कीप ऑन अपडेटिंग देयर करंट अफेयर्स पोर्शन। सो यू डू नॉट हैव टू लाइक यू बी ओवर कॉन्फिडेंट। नंबर 2, यू कैन नॉट रिलाई ऑन जीएस। यू कैन नॉट रिलाई ऑन जीएस। अभी मैंने आपको बताया कि जीएस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। उसकी भाई देखो 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस आपके क्वांट से आ रहे हैं, राइट। 5-6 क्वेश्चंस आपके पीसी से आ रहे हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस आपके साइंस से आ रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपके लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन से आ रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो आप सारे कितने सारे क्वेश्चन तो यही से बन रहे हैं, तो आपका जीएस पे 20-30 क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप क्या उस पर रिलाई कर सकते हो? 20-30 है ना, 20-25 पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अगर आप मिलाएंगे तो
हाँ, मोटा मोटा आपको 25 क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे. So you cannot rely, right? Then you have to think that which are those subjects where I'll put more efforts, right? The benefit is more. It's not that you're spending a lot of time on this, yes, and then the benefit is less. Then practice quant. It is very, very important that you practice, because sometimes क्या होता है, we know the questions, right, but we are unaware in the examination hall, और हमारा speed इतना कम होता है that we are not able to solve it. So you have to practice it. You cannot ignore English, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, because वो कैप ग्रामर पूछी जाती है. अगर आपको लगता है I belong to a good background, I can speak well in English, तो ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. देन ईपीएफ फॉर रिलीजियस सब्जेक्ट्स यू हैव टू डू रिलीजियसली. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको रिलीजियसली करना है, बिकॉज देर आर वेरी 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 स्कोरिंग, और हर कोई उसको करके जाएगा अच्छे से. तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, दैट वुड डिसाइड द कट ऑफ. देन स्पीड ओवर डेप्थ, ये आपको अभी देखना पड़ेगा. ठीक है. एंड एमसीक्यूज माइंडसेट शिफ्ट की थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. नाउ द वेरी एक चीज मैं आपको जो मुझे जो यहाँ पे बतानी थी, दैट इस साल एपीएफसी एग्जामिनेशन जो यहाँ पे आ रहा है, राइट, एपीएफसी एग्जामिनेशन आ रहा है. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप यूपीएससी में जाएंगे तो आपको भी पता है फॉर द जनरल कैटेगरी, है ना, द एज इज 33 ईयर्स, राइट, द एज इज 33 ईयर्स. वेयर एज यहाँ पे एपीएफसी की, एक सेकेंड, सो एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये कि दैट इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु हैव एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट्स इन द यूपीएससी, हु हैव like reached their upper age limit. You know that in UPSC the upper age limit is 32 years, and for OBC it is 35 years, है ना, 6 and 9 attempts, right? But in the APFC, right, in the APFC the upper age limit for the general category students is 35, whereas for a OBC it is 38 years. Now you can see that, right, even, right, how perfect this can be for your as an opportunity. This can be as your plan B. Why opportunity? Because some aspirants like इस attempt में भी, है ना, जो अभी आपका ये attempt हुआ था 2026 में, if they have lost all the attempts, then they can rely on this examination. Even if you are not like आपका age अभी नहीं हुआ है, you can rely on this examination. You can boost your hard work, and let's say for one person you are not able to clear it, then for the next year you can prepare it well, right? So it can serve as a better plan B, better opportunity for this, right? So that is why, और ये जो age है, it is there for a reason. ठीक है. तो चलिए, I hope you like this video, and we will be bringing various videos on this series. For example, the syllabus bifurcation and the previous year questions subject wise will be bringing on this platform. Till then, keep preparing, keep working hard. Thank you so much.